Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. That help in fertile distribution of the cellulose of the plant materials. It's not called and herbivores and cutting herbivore animals killed. अरे यार Good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. आराध्या रीडिंग स्टार्ट करो तो Ma'am, आराध्या she is not in the class. यहाँ से वो हो गया था ना, अब केवल अमीबा वाला बचा हुआ है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can I read? Ma'am, can I read? Ma'am, can I read? Ma'am, can I Ma'am, ask? can I? Ma'am, Can I can I? ask? Listen, can I read? Ma'am, can I ask? No, Ma'am, no, Anushka. I'm not- Ma'am, Ma'am, can I? I'm not listening. Whatever you are saying. हद कर देता है भाई का कि कैन आई रीड 10-40 जुटेगा तो 40 बार कैन आई रीड, बस उसी में टाइम ओवर। एक का नाम आराध्या को बोल दिया तो क्या गलती कर दी है? कल भी बताए थे ना। मैम वो Ma'am, क्लास पर में आज नहीं है। नहीं मैम वो क्लास में नहीं है। दिव्या, अच्छे दिव्या रीड करो। चलो जहाँ हुआ था उसके बाद से रीडिंग करो। मैम लार्ज इंटेस्टाइन है। हाँ लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन से ठीक है। The large intestine. Large intestine is wider and shorter than the small intestine. It is about 1.5 meters in length. The undigested and unabsorbed food enters the large intestine. Here, the excess of water and some minerals are absorbed from the undigested food. The leftover waste part of food passes to the rectum and is stored there as fecal matter. The fecals are eliminated through the anus. This is called egestion. Next, Ashish, nutrition in curd chewing herbivorous animal. Yes, ma'am. Curd chewing herbivorous animal color ruminants. Cow, deer, camel, buffalo, sheep, and giraffe are some well-known ruminants. They have a special four-chambered stomach. The first chamber is the largest and is called rumen. This animal first स्टमक, उसको स्टमक बोलते हैं, स्टमक नहीं, प्रोनाउंसिएशन का बोलते हैं, स्टमक। चलो stomach. The first chamber is the largest and is called rumen. This animal first swallow the food quickly and store it in their rumen. The rumen has some microorganisms that help in partial digestion of the cellulose of the plant material. This food is now called curd. The ruminants later on bring this curd back to their mouth and chew it thoroughly. This process is called rumination.
digestion. The throttling of food during ruminants help to break down the rich cellulose content of the plant material. This breaking down make it easy for this animal to digest the cellulose content. Ruminants also have a species like bag-like structure between their small intestine and the large intestine. This is called cecum. The bacteria present in the cecum help in the further digestion of the cellulose of the food. It is interesting to note that such bacteria are not present in the human digestive system. The human being cannot therefore digest the cellulose, which goes on to form roughage. Roughage help in bowel movement in the human body. In large intestine, food, undigested food and unabsorbed food is absorbed. And water from the undigested and unabsorbed food is absorbed. And some minerals which are present in the undigested food, it is also absorbed. All of you must listen very carefully. In large intestine, whatever undigested or unabsorbed food left in the small intestine goes to the large intestine, and some water and mineral are present in the unabsorbed and undigested food. A large intestine, wall of large intestine absorb this water and mineral, important nutrients from the unabsorbed and undigested food. And the rest of the food that pass to the rectum, and through it become feces, and it is get right from our body through anus. Anus के through बाहर निकल जाता है. That process is known as egestion. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजेशन. अब इस बात को हम इसलिए कल फिनिश नहीं किए थे कि एक जरा सा इस बात को सभी बच्चे ध्यान से सुने. सभी जिसकी मम्मी जो है ना उठा करके टॉयलेट भेजती हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये मेरा मैसेज है कि वो लोग जो लेट से उठते हैं उन लोगों के लिए, जो अभी तक क्लास में ऐड हो रहे हैं उन लोगों के लिए ये मैसेज है. और ये क्या मैसेज है? ध्यान से जरा सुनिए. ये टेंडेंसी है. किसकी टेंडेंसी? लार्ज इंटेस्टाइन की टेंडेंसी है कि एब्जॉर्प्शन करना. अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड से वो वाटर का और मिनरल का जो है एब्जॉर्प्शन करता है. ये टेंडेंसी बन चुका है लार्ज इंटेस्टाइन का. अगर जो बच्चे जो कि लेजी, बहुत ठंड लगता है, बेड पर पड़े रहते हैं, कुछ को क्लास में भी हम लोग देखते हैं कि उसकी मम्मी कहती है कि उठो उठो मैम कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हैं, वैसे बच्चे के लिए ये मैसेज कि टेंडेंसी बन चुका है. लार्ज इंटेस्टाइन के वाल का टेंडेंसी हो चुका है कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगा. अगर वहां लार्ज इंटेस्टाइन में लॉन्ग टाइम तक, जैसे अभी 9 बजा ना, 9:10, तो 9 बजे तक अगर रह गया तो उसमें जो भी फीसेस है उसका रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है. टॉक्सिक मटेरियल जो कि बॉडी में पॉइजनस क्रिएट करता है, पॉइजनस है, उसका एब्जॉर्प्शन शुरू होने लगता है. जो बच्चे सुबह उठ करके अपने फीसेस को बाहर नहीं निकालते हैं, वैसे बच्चे का रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है. लार्ज इंटेस्टाइन का टेंडेंसी बन चुका है रीअब्जॉर्प्शन का. तो इसलिए हमारे इंडियन कल्चर में, मेरा इंडियन कल्चर जो है ना बहुत साइंटिफिक है, बहुत अच्छा, बहुत साइंटिफिक, एकदम बेस्ड. मोस्ट ऑफ द कल्चर आर बेस्ड ऑन द साइंस. अगर उसके डेप्थ में जाओगे तो ये पता चलेगा कि हम लोग का इंडियन कल्चर जो है साइंस बेस्ड है.
हमारे कल्चर में क्या है कि अर्ली मॉर्निंग उठो और उठ करके टॉयलेट जाओ, ये है ना हमारे कल्चर में। और हमारे बॉडी के अनुरूप, हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अनुरूप जाओ, ब्रश करो, टीथ का ब्रशिंग करो, और क्या करो, फिर क्या है, अभी समर है तो थोड़ा सा वार्म वाटर से क्या करो, बात कर लो, टेक बाथ विद द वार्म वाटर, है ना। लेकिन यू मस्ट गो toilet early in the morning. It is very necessary for keeping your health proper, because it is the tendency of large intestinal wall to absorb water and mineral, Ma'am, it and create if the absorb and undigested food remains there, stay in the large intestine for longer duration of time, reabsorption of this undigested and unabsorbed food started going inside the blood circulation through the wall of large intestine. तो अब सब लोग जो है इसमें से कहने का जरूरत नहीं है, कहेंगे नहीं। हम देखते हैं कि बहुत लोगों की टेंडेंसी है कि हम 8 बजे उठेंगे और 9 बजे उठेंगे। तो क्या होगा 9 बजे और 8 बजे और 10 बजे उठने में, क्या होगा? Yes. हाँ, मैम रीअब्जॉर्प्शन तो ये टॉक्सिक मटेरियल्स का रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा। हाँ, टॉक्सिक मटेरियल का पॉइजन क्रिएट रीअब्जॉर्प्शन होगा होगा, बॉडी में। और टॉक्सिक मटेरियल आपके बॉडी में होगा तो डिफरेंट टाइप का डिजीज, एकन, और ये सब जो है, एकन तो ऐसे हार्मोनल इफेक्ट है, लेकिन ब्लड जब बढ़िया नहीं होगा, प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, तो वो सारा कुछ होगा। आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। मैम पॉइजन क्रिएट करेगा। हाँ, कितना बढ़िया तो दिख रहा है। इसलिए ये जो हमारा इंडियन कल्चर है, ये क्या है, तुम लोग कहते भी हो कि अर्ली टू बेड, मैम साइंटिफिक है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हाँ, Make मेक up सम हेल्दी एंड वाइज। वेल्दी एंड वाइज। Why? जो हेल्दी होगा वो वेल्दी होगा, हेल्दी होगा वही वेल्दी होगा, और वही जो है क्या उसके पास गुड क्वालिटी का जो है ब्रेन होगा, और वो अच्छा पढ़ सकेगा, दुनिया में अपना नाम कर सकेगा। चलिए, ट्रेसिंग द जर्नी ऑफ चपाती और सैंडविच। सैंडविच का क्या जर्नी है, ये एक्टिविटी है, च्यू करते हैं माउथ में, तो फिर क्या Ma'am, होता है, can I- सलाइवा। Ma'am, first ingestion, we take in food through our mouth, from where it goes to the buccal cavity where we chew it, and then it passes to the after chewing? esophagus. From it, No, from it till goes. when we just wait. When we chew the food, what happened to the mouth? What happened in It mouth? makes saliva with food. What do the saliva? What is the Saliva. function of saliva? Ma'am, If the saliva- It breaks down Ma'am, the food into saliva, it breaks down the food into simpler substances. It help to digest the food. in the chapatis, वो starch is present. Starch is the big molecules of carbohydrate. And Ma'am, that when the saliva brings mixed with it, it get converted into sugar. It is the Sugar. simplest form. All of you have seen how the sugar is soluble in water. So when we chew the chapatis or sandwich for sometimes in our mouth, saliva secreted from the salivary gland, and this saliva having enzyme, that enzyme act on the starch present in the roti or chapatis, and it convert the starch into sugar. And that's why
when we chew the bread for few minutes in our mouth, it start giving taste. Ma'am, it sweet. starts tasting sweet. Ma'am, it starts tasting sweet. Sweet. Continue. Next, after buccal cavity, where the food goes? Ma'am, the Continue food it. goes to the food pipe, हाँ, which is the way to take it into the stomach. what happened to what happened in a stomach? There are few enzymes present in the stomach. The hydrochloric acid kills the bacteria. Kills the bacteria. Mucus present in the stomach to protect the inner lining of the stomach. And from there, the digested food goes to the small intestine. One thing you are forgetting. Ma'am, the food is partially digested. Ma'am, the Ma'am, food it is helps in partial digestion of food. Listen, partial digestion of food takes place, and one more thing, hydrochloric acid, and that kill the germs Ma'am, I had told that. bacteria, virus. Hydrated medium. And this makes the food acidic, है ना? So that bile juice Ma'am, it also secreted provides by liver. needed for the digestion of fat. Pancreatic juice secreted by pancreas can act in better way on the semi-solid food that is come out from the stomach. Tell about the history of the small intestine. Who will explain it? Ma'am, I Chalo. Anushka, just wait and give a chance to other also. Anushka, Sakshi, can you? Divya. Yes, ma'am. Explain it. What happened in a small intestine? Ma'am, food get digested. Who digests the food? Ma'am, intestinal juice. Intestine not digest food. Ma'am, can I? Food. Ma'am, can I? Anushka? अनुष्का रुको ना अनुष्का दूसरे को भी चांस दो दिव्या Yes, ma'am. दिव्या In small intestine. in a small intestine that help in digestion of food. Ma'am, can you repeat? Which component present in a small intestine that help in digestion of food? Finger-like structure villi. अरे अभी ना बोले हैं अभी बोले हैं मैम मैं बोलूं मैं बोलूं अनुष्का मैं बोल दूं बोलो अनुष्का बोलो Ma'am, the small intestine receives the bile juice, pancreatic juice, and intestinal juice Very good. from the various glands and use it to digest the food. The villi present in the small intestine also absorbs the food and passes it to the blood. And then the undigested food goes to the large intestine. From there, the absorption of remaining water takes place. And undigested foods are eliminated from the process of digestion in the large intestine. Very good. अब nutrition in chewing herbivorous animal पूछेंगे इस रुक को वेट करो एक एक करके अभी पूछे ना एक एक करके रीडिंग करवाएंगे और एक एक करके पूछेंगे जो सिलेबस है बेटा उसको रिवीजन करवाना बहुत जरूरी है तो आगे भी बढ़ते चले और पूछते भी चलेंगे आप लोग और जब आंसर कीजिएगा आप अपना वीडियो ऑन रखिएगा बस जब आंसर कीजिएगा तब न्यूट्रिशन इन कर्ड गिविंग हर्बीवोरस एनिमल यस जो है ना अभी सो करके उठा है क्यों हम कंफर्म है इस बात के लिए क्योंकि वो आंख को मल रहा है सो के उठने के बाद जैसा कंडीशन होता है वो कंडीशन सो कर रही है और किसके माइक से आवाज आ रहा है जल्दी एकदम अपने माइक को म्यूट करो सभी ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक
नहीं म्यूट हो गया, हम रिमूव कर देते हैं, मैम विजय एकदम कुमार। रिमूव कर देंगे। हद हो गया, क्लास हो रहा है, टाइम नहीं है कि सारे बच्चे से हम क्वेश्चन आंसर पूछ सके, रिवीजन करवाना जरूरी है। ये माइक खोल के बैठे हैं। So nutrition in curd chewing herbivorous animal. Curd chewing herbivorous animals are known as ruminants, are called ruminants. जो कर्ड मुंह में जो कर्ड लेकर के chew करते हैं वो उसको कहते हैं ruminant. Camel, buffalo, sheep, giraffe are some of the well-known ruminants. They have a special 4-chamber stomach. First chamber is the largest and it's called rumen. These animals first swallow the food quickly and store it in their rumen. देखे होंगे कि पूरे नाद में, पूरे ट्रक में एकदम या बाल्टी में एकदम भर के चारा दिया जाता है, फॉडर जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है, और वो विदिन 5 मिनट्स एकदम जल्दी 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 इनगल्फ करता है, केवल इनगल्फ करता है, निगल लेता है अपने अंदर। मंकी भी यही करता है, वो इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। किसमें लेता है? ये जो स्टमक उसका 4 चैम्बर है, उसके फर्स्ट चैम्बर को रूमेन कहते हैं, उसी में वो स्टोर कर लेता है। और उस रूमेन में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया भी होता है जो कि हमारे पास नहीं है, हमारे स्टमक में पहले था। जब हम लोग ग्रास ईटिंग एनिमल थे ना, हम लोग भी तो एनिमल ही ना थे बेटा, फूड कुक करके, तो हम लोग के पास, हम लोग के भी स्टमक में जो कि अभी वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है, वो जिसको क्या कहते हैं, कभी कभी ऑपरेट करके लोग निकालवाते हैं, क्या उसका नाम है बोलो? तो वो था, लेकिन अब हम लोग के पास नहीं है, रुको याद आ जाएगा, बीच में बोल देंगे। अपेंडिक्स, हाँ वो उसका अब जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि सुना सुना नाम लग रहा है। हाँ अब हम लोग कुक फूड खाते हैं ना, तो अब उसका बैक्टीरिया का जरूरत नहीं है। अब सेलुलोज तो हम लोग छिलका भी हटा देते हैं, सेलुलोज इतना हम लोग रफेज भी नहीं खाते हैं, सब कुछ नेनुआ कद्दुआ सब कुछ हम लोग को छिलका के सहित खाना चाहिए। तो हम लोग ऐसा हो गए हैं कि छिलका भी हटा देते हैं, तो अब हम लोग को जरूरत नहीं है सेलुलोजिक मटेरियल का डाइजेस्ट होने का। हाँ तो ग्रास ईटिंग एनिमल है ही नहीं, लेकिन ये रूमिनेंट्स के रूमेन में क्या होता है कि बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया जो है डिकम्पोज करता है, पार्शियल डाइजेशन में, फूड के पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करता है। रूमेन later bring the curd back to their mouth and chew it thoroughly. एकदम लिजर्ली वो जब बैठा रहता आराम से, एक बार तो इनगल्फ कर लिया, लेकिन जब आराम से वो बैठा रहता है तो अपने कर्ड को फिर मुंह में लाता है, माउथ में लाता है, और उसको च्यू करता है। और च्यू करने के समय जो सेलुलोज जो होता है, प्लांट मटेरियल, उसका क्या होता है, रूमिनेंट जो है डाइजेस्ट करता है। वो जो स्लाइवा, देखो स्लाइवेशन देखोगे कि चबा रहा है, कभी कभी देखना ना, ये सब देखना चाहिए बेटा, साइंस पढ़ना तभी सफल होगा जब प्रैक्टिकली देखोगे। मैंने देखा वो लोग बैठ करके चबाते रहते हैं, उसके उनके मुंह से ना व्हाइट व्हाइट निकलते रहता है। हाँ वही स्लाइवा निकलता रहता है बेटा, वही वो व्हाइट व्हाइट निकलता है, वही उसमें स्लाइवा है, और स्लाइवा जो है च्यू करते रहते हैं। हाँ च्यू करते रहते हैं, तो वो सेलुलोटिक मटेरियल जो है ना, आराम का जो मटेरियल बना हुआ है उसके फोडर में, उसके चारा में, उसको वो लोग क्या करते हैं, उससे च्यू करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। मैम क्यों निकलता है व्हाइट व्हाइट? कैमल से भी ऐसा ही होता है। हाँ देखो ना, तुम भी रबर चिबाओ ना, उतना देर के बाद उसमें लाए हैं ना, इसलिए। मैम कैमल में भी होता है वो। हाँ वो कैमल भी ऐसा ही होता है। हाँ मैम मेरी बात सुना ना तुम लोग, अगर मुंह में तुम रबर भी डालो ना, एक रबर अच्छा साफ सुथरा डालो ना, च्यू करो, देखो तुरंत रूमिनेशन नहीं, स्लाइवेशन शुरू हो जाता है। अगर खाना अच्छा, मम्मी जो है मैगी बना रही होती है वहां किचन में, और तुम रूम में पढ़ रहे होते हो, केवल स्मेल से ही स्लाइवेशन शुरू हो जाता है। तो जब
मैम मुंह में पानी ना? आ जाना मैम, मुंह में पानी आ जाता है। हाँ वही तो सलाइवा है, वही तो सलाइवा है, मुंह में पानी आ जाना वही सलाइवा है। मैम अभी अगर मैम आ मैम गया, स्मेल अभी के फिर से आ कारण ही गया। आ जाता है। हाँ, तो ये जो है रूमिनेंट्स जो है कर्ड को अपने माउथ में च्यू करता है और उसको लेजर टाइम में खा लिया, एक बार आराम से बैठा है उसको च्यू कर रहा है, एक एक करके ला रहा है और च्यू कर रहा है, वो उसका डाइजेशन कर रहा है, फिर बैक उसको जो लाने में है मैम 2-2 परेशानी होता 3-3 होगा घंटे ना? तक मैम। क्या बेटा? हम उसको लाने में परेशानी होता होगा ना? नहीं नहीं, वो बना हुआ है, वैसा ही हैबिट बना हुआ है, उसको परेशानी कैमल क्यों होगा? मैम कैमल में भी हाँ ऐसा ही कैमल होता है। भी, हाँ मैम कैमल हाँ में भी ऐसा ही मैम होता है। एलिफेंट सभी ऐसे यूट्यूब करता पर है। देखना ना रूमिनेट का, सुनो ना मैम रूमिनेंट क्या? का रूमिनेशन सब लोग यूट्यूब पर देख लेना। किसी भी चीज को तुरंत एकदम मन में क्यूरियोसिटी हो तो यूट्यूब पर जाओ और उसको मैम हम क्लिक लोग करो, काऊ को तुमको देखे दिखा हुए हैं देगा। ऐसे। हाँ मैम काऊ को देखे हुए हैं। मैम काऊ को ऐसे देखे हुए हैं। हाँ, काउ बफेलो को तुम लोग जरूर देखे होगे, नहीं देखे हो तो यस घर मैम, ही में इसमें तो हो लॉकडाउन में मैं आसपास। विलेज में बहुत ज्यादा दिन रही थी तो मेरे को ये सब मौका मिला था देखने का। हाँ देखो, तो वो देखोगे कि एकदम च्यू करता रहता है और उससे क्या होता है कि हाफ तो डाइजेस्ट माउथ में ही हो गया, उसके बाद स्टमक में गया, तो स्टमक में जो है से फिर फर्दर डाइजेशन हुआ। अब उसके बाद ये रूमिनेंट्स को एक स्पेसियस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। यही हम लोग का अपेंडिक्स ऐसे ही था पहले, जैसे इन लोग का है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में स्पेसियस जो है जगह जो है वो उसको कहते हैं सीकम। उसको क्या कहते हैं? सीकम। तो ऐसा ही हम लोग का, हाँ हम लोग का अपेंडिक्स था जो कि अब सेलुलोटिक मटेरियल हम लोग खाते ही नहीं है तो वो रिड्यूस कर गया, वो वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है। उसको अब पेट में अगर कुछ अनाज का दाना उना कभी अचानक से चला जाता है, उसमें सड़न हो जाता है तो उसको काट करके आदमी मतलब डॉक्टर निकाल देता है। तो ये चूंकि उसका जरूरत नहीं है, धीरे धीरे रिड्यूस कर गया है अपेंडिक्स का। तो मैम अगर ये हम लोग को इन बॉडी का में रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर उससे हम लोग को प्रॉब्लम ही होता है ना, इसलिए निकलवा दिया हो जाता है। नहीं, हर एक को प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे देखो किसी बच्चे को कभी कभी ऐसा माना जाता है कि बच्चे खाना खा लिए और खाना खा करके तेजी से दौड़ गए, इसलिए मना करते हैं ना पेरेंट्स कि खाना खाए हो दौड़ो मत दौड़ो मत। तो अचानक से अगर कुछ भी एकदम वेरी स्मॉल फूड पार्टिकल्स भी उसमें स्टक कर जाए ना, उसमें फंस जाए, तो वही वो सड़न होने शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो अपेंडिक्स जो है घाव में कन्वर्ट हो जाता है। तब पेट दर्द, स्टमक पेन शुरू हो जाता है। एक क्लास में एक बच्चा था, किसी से सेशन में, अभी याद नहीं है, एकदम जोर जोर से रोने लगता था। होगा 10 में पहुंचा होगा, तो उसका ऑपरेशन हुआ। वही अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, अभी हाँ 10 में पहुंचा होगा वो बच्चा, छोटा सा पतला सा था। देते हैं। हाँ, तो उसका काट के निकाल दिया, बहुत अच्छा था। फिर आया ऑपरेशन करवाने के बाद तो पूरा क्वेश्चन आंसर कर लिया। तो ये हो गया तुम्हारा सीकम हो गया, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्यूज मी मैम। इम्पोर्टेंट देखो 4 चैम्बर कौन कौन है इम्पोर्टेंट, बहुत सारा चैम्बर देख रहे हो फोटोग्राफ, लेकिन इम्पोर्टेंट मिठू कह चैम्बर रही है कि हम इतना छींकने लगे, अगर कोई कहेगा मिठू लड्डू खा लो तो न छू, अगर कोई कहे कि किसके खाना माइक खा से लो तो आवाज आ रहा है? हाँ छू, कोई पूछा तो क्या छू। यस के आवाज से, यस के मोबाइल से ना, ठीक। यस को अभी अभी आउट भी हो गया था, रिमूव कर देते हैं यस। नो ध्यान मैम नहीं नो दे रहे मैम। हो तो फिर माइक को म्यूट करो। मैम गलती से ऑन हो गया, ऑफ किया था। हाँ, माइक को हमेशा म्यूट रखो, जब तुमको बोलना है तब तुम ओपन कर सकते हो, क्वेश्चन पूछते हैं तो तुम बोलना और तब उसके बाद ओपन करना। तो अब देखो 4 चैम्बर में कौन है? रिमेन और सीकम। सीकम में क्या है स्पेशल चीज कि इट इज द हाउस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सीकम
हेल्प इन फर्दर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑफ द फूड। एक तो एनिमल अपने माउथ में जो है उसको डाइजेस्ट कर लिया, फिर जो है ये सीकम में फिर उसका जो है बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज करता है, ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है, और इस तरह से फूड जो है डाइजेस्ट होता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट हियर, बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Human being cannot therefore digest the cellulose which goes on to form roughage, और जो कि रफेज बनता है, छिलका उल्का जो सब्जी का छिलका, फ्रूट का छिलका के सहित हम लोग खाते हैं, तो वो रफेज बनता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका डाइजेशन नहीं होता है और वो फूड ऑब्जर्व नहीं किया जाता फिर वो, लेकिन तब उसका इंपॉर्टेंस है कि वो हेल्प करता है बॉवेल मूवमेंट पे, बहुत जरूरी चीज है। फ्रिक्शन से ही ना मूवमेंट होता है, तो ये जो है अगर रफेज होगा फूड में तो फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन से मूवमेंट होगा फूड का, तो आंत में जो है इंटेस्टाइन में वो फूड फंसेगा नहीं, स्टक नहीं होगा, इसके लिए रफेज जरूरी है। लेकिन रफेज का जो है डाइजेशन नहीं होता है, वो सीधे निकल जाता है, अनअब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड फूड में फीसेस बन के निकल जाता है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है फूड में। और एक बात यहाँ फिर ऐड कर देते हैं, फिर अमीबा का बताते हैं। हाँ, इसका रफेज का छिलका का छिलका, यस मैम, सब्जी जैसे, हाँ पहले हम लोग मैम रफेज के छिलके में वो बैक्टीरिया होता है? नहीं, रफेज होता है, रफेज सेलुलोज का बना हुआ बड़ा बड़ा फाइबर होता है, फाइबर होता है आशीष, और वो फाइबर जो है ना फ्रिक्शन क्रिएट करता है, स्टमक में जब जाता है फ्रिक्शन क्रिएट करता है और उससे फूड का मूवमेंट होता है, आगे बढ़ता है, और फूड जो है बाउल की तरह, कटोरा की तरह, कटोरा में जैसे ये रखा हुआ है मूव करता है, उसी तरह से इंटेस्टाइन में मूवमेंट होता है। तो उस मूवमेंट को कौन प्रोवाइड करेगा, कौन मोशन प्रोवाइड करेगा, तो ये रफेज प्रोवाइड करता है। मैम रफेज, हाँ, ये रफेज प्रोवाइड करता है। इसीलिए ना कुछ लोग अब ये बिल्कुल एप्पल जो है छिलका छील करके नहीं खाना चाहिए, स्किनिंग करके नहीं खाना चाहिए, उसको छिलका के सहित खाना चाहिए। खीरा जो है कुकम्बर, उसको भी बिल्कुल पीलिंग नहीं करना चाहिए, उसका स्किन रिमूव नहीं करना चाहिए, बिना छिले में रफेज होता है। हाँ उसमें रफेज हाँ, छिलका में ही रफेज है। अच्छा, नेनुआ और कद्दू का जो सब्जी बनता है, आजकल का ट्रेडिशन चल गया है कि उसको उसका स्किनिंग करके, उसका जो है ना पीलिंग करके, पील जो है ऊपर से हटा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बचपन में खाए हुए हैं, कद्दू और बड़ी का सब्जी बनता था हमारे नानी घर में, वो छिलका सहित है ना, छिलका को रिमूव नहीं करते थे, तो वो रफेज का वर्क हुआ है ना, स्पेशल रफेज बाहर से लेना नहीं पड़ा। हमारा बताए ना कि इंडियन कल्चर और इंडियन थाली भी बहुत एकदम बैलेंस डाइट है। पहले जो है दाल चावल सब्जी और दाल में नींबू, इधर साइट्रिक एसिड और विटामिन डी, घी, चाहे तो नींबू डाला या फिर घी डाला। उसके बाद जो है मूली को काटे उटे नहीं, सीधे मूली ले लिया या गाजर ले लिया, ऊपर से खाना के ऊपर रख लिया और उसको खाया, वो रफेज है, रफेज का वर्क किया। हम लोग खेत सुखा करके खाते हैं। हाँ, तो और धनिया वनिया जो हम लोग ऊपर से डालते हैं और ऐसे ही खा लेते हैं, जिसे भुजा उजा में डाल देते हैं, तो वो रफेज का वर्क करता है। मैम हम लोग रफेज हटा देते हैं। नहीं, रफेज हटाना नहीं चाहिए, तो मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि विथ रफेज जो है हम फूड आइटम को कंज्यूम करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बॉवेल मूवमेंट के लिए। वो मूवमेंट हो सके, फूड का प्रॉपर मूवमेंट हो सके, प्रॉपर डाइजेशन हो सके, ये जरूरी है। और इससे मूवमेंट से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। फूड जो है वो कभी भी इंटेस्टाइन में स्टक नहीं करेगा, फंसेगा नहीं। जब इंटेस्टाइन में स्टक करता है उसी को कॉन्स्टिपेशन करते हैं ना। जब वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल जो है प्रॉपर नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन। आज हम लोग का गलत फूड ईटिंग हैबिट के वजह से, जो पीलिंग करके सब चीज हम लोग खाने लगे हैं, उसके वजह से
या फिर मैदा का सब चीज खाने लगे हैं, चाउमीन और पकौड़ा समोसा, उसके वजह से मैक्सिमम लोग का 80 कहते हैं 85% लोगों के पास कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, इवन कि बच्चे के पास भी। हाँ, बड़े के पास तो हाँ इंटेस्टाइन तो शिथिल पड़ता जाता है, तो बड़े के पास हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चे को भी आजकल कॉन्स्टिपेशन होता है ना। तो ये गड़बड़ फूड ईटिंग हैबिट के वजह से। अब चलो न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा ये is holozoic as it take its food inside the cell of the amoeba. For taking the food inside the cell, it arises false feed, that is known as pseudopodia. Pseudo means false, a pod means food. Ma'am, feet. Ma'am, feet. मैम फीट, हाँ। मैम फीट। हाँ फीट, फूट को फीट, फूट को क्या कर दिया? फीट। फीट। हाँ, तो सीडोपोडिया से ये जो है फॉल्स फूड से अपने फूड को कैप्चर करता है और फिर सेल के अंदर ले लेता है। अमीबा फीड ऑन ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी। When amoeba come in contact with the food, it produces pseudopodia around the food particles. As the cell membrane of the pseudopodia fuse, the food get trapped in the food vacuole. Pseudopodia अपना ऐसे राइज किया और धीरे धीरे pseudopodia क्लोज आया और बीच में फूड पार्टिकल्स ट्रैप हो गया और ये दोनों फ्यूज हो जाता है, उसका सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो गया, तो अंदर सेल के अंदर फूड आ गया। इस तरह से अमीबा का जो है न्यूट्रिशन होलोजोइक है। Amoeba also takes its food inside the hole, that is the cell. अब digestion, when food taken inside the cell, it is get digested with the help of enzyme, various type of enzyme, and unabsorbed and undigested food is get right out of the cell membrane, and this process is known as digestion. अब चलो अब एक एक करके तुम लोग से पूछते हैं, जिससे पूछेंगे बस वही माइक ऑन करोगे और आंसर करोगे। अपूर्वा हैंड रेज की हुई है, चलो अपूर्वा से स्टार्ट करो। हाउ मेनी चैम्बर आर प्रेजेंट इन द रुमेन? अपूर्वा। मैम 4। नेम देम। मैम रूमेन, हाँ, मैम रेक्टिकुलम, ओमैसम, नो मैम सॉरी, रूमेन, ओमैसम, मैम अबोमासम, एंड मैम काइकम। बुक में कैसे बोल रही है, बुक का फिगर देख देख के बहुत सारा चैम्बर है। मेनली अभी जो है तुमको 4 चैम्बर पढ़ना है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तो हो गया ह्यूमन बीइंग के तरह, और एक हो गया रूमेन, और एक क्या हो गया, सम हो गया। रूमेन और सिकम 2 चीज हो गया एक्स्ट्रा, और एक लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अरे तो उसमें ओमासम और एबमसन ये सब तो है ही छोटा छोटा पार्ट, ये पार्ट जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, इसी का पार्ट है। अब चलो नेक्स्ट, तो मेन 4 चैम्बर है ना। अगर आए क्वेश्चन में कि हाउ मेनी चैम्बर ऑफ रुमिनेंट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो 4 चैम्बर लिखना, रूमेन लिखना जो पढ़े हो, रूमेन लिखना, सिकम लिखना, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, रूमेन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद सिकम और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, रूमेन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, सिकम और लार्ज। बट मैम एक दूसरे बुक से भी पढ़ती हूँ मैम, उसमें लिखा है रूमेन, ओमासम, एबोमासम एंड सिकम। अच्छा ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा आज हम एक अभी वेटेटर से पूरे पार्ट को अभी हम पूछेंगे, है ना, कि वो कैसे डिवाइडेड है। हाँ, वो कैसे डिवाइडेड है, इसी का पार्ट है ना वो, जैसा कि हम जानते हैं ओमासन और एबोमसम,
ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। अच्छा ठीक है, फिर कंफर्म हो लेंगे।